لبیک اللہم۔ سمرقند میں اس جگہ کا نام ریگستان ہے۔ ایک وقت تھا یہ صدیوں پہلے صحرا تھا۔ سب سے پہلے یہ مدرسہ بنا، قلوب بیگ نے بنایا جو کہ تیمور کا پوتا تھا، پھر یہ بنا سامنے، اور پھر یہ بنا۔ ایک فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ آپ نے محسوس کیا اس کے مینار جھکے ہوئے ہیں۔ کل کو اگر زلزلہ آئے یا اس طرح ہو تو یہ عمارت پہ نہ گرے، عمارت کو نقصان نہ پہنچائے۔ آج بھی سائنس اس جگہ کے فن کو پرکھ رہی ہے کہ وہ لوگ کیا تھے اور وہ سائنس کیا تھی اور ان کے حقائق کیا تھے۔ آج بھی سائنس اس دنیا کو دیکھ رہی ہے، اور ان میں 60 کے قریب کمرے ہیں اندر۔ ان میں گرم ٹھنڈے پانی کا نظام، سردی گرمی کا نظام، اور حیرت انگیز طور پہ یہاں سائنسی علوم پڑھائے جاتے تھے اس دور میں، روحانی علوم پڑھائے جاتے تھے، اور وہ سائنسی علوم اور روحانی علوم جو آج دنیا تلاش کر رہی ہے، آج دنیا تحقیق کر رہی ہے، وہ پڑھائے جاتے تھے۔ آج بھی دنیا حیران ہے کہ وہ اس روحانی کائنات تک اور سائنسی کائنات تک پہنچے کیسے تھے۔ دنیا آج تک ان حقائق تک نہیں پہنچ پائی۔ عجب نظام ہے، سمرقند میں ہے یہ سب کچھ۔ جمعہ کا دن تاشقند سے صبح کی فلائٹ لی، اور یہ سفر تقریباً 1.5 گھنٹے کا، 700 کلومیٹر کا۔ ترمز پہنچے امام ترمذی کے مزار پہ، پھر وہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو آگے تھی شیر آباد کی۔ کیا ہستی ہے امام ترمذی، اب تو کچھ آبادی ہے، اس وقت کیا جنگل ہوگا، ویرانہ ہو۔ اس کو محبت کی مستی میں مخلوق کو کیا خیر کا سبق دے گئے، اور کیا برکتوں کے دروازے کھلوا گئے۔ امام ترمذی جن کی بخاری شریف کے بعد بہت بڑی کتاب ہے، بہت حدیث کا مجموعہ ہے، کملی والے کا فیض ہے، مدینے والے کا فیض ہے جو انہوں نے پھیلایا۔ بہت عظیم انسان تھے امام ترمذی۔ یہ سامنے افغانستان کا بارڈر ہے اور دریائے آمو ہے بالکل سامنے، اور یہ حکیم ترمذی ہیں۔ ایک تو امام ترمذی ہیں، وہ یہاں سے ترمذ سے 75 کلومیٹر شیر آباد، وہیں سے ابھی حاضری ہوئی ہے، ابھی شام ہو گئی۔ حکیم ترمذی ہیں، بہت بڑے اسکالر، صوفی اور کتابوں کے مصنف اور عظیم انسان تھے۔ صدیوں سے ان کا علم اور معرفت اب تک دنیا جانتی ہے، اور ہم اب ان کی جگہ جا رہے ہیں جہاں زیر زمین چلہ گاہیں ہیں۔ حکیم ترمذی کی چلہ گاہیں ہیں، اور مٹی زیر زمین۔ کیا اللہ والے تھے جو زیر زمین چلہ گاہوں میں اللہ کے نام کی یادیں، اللہ پاک کا تعلق اور تصور، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کی یادیں، محبتیں، ذکر، اذکار، یہ زیر زمین چلہ گاہیں ہیں، بہت گہری، بہت گہری۔ آج بھی مٹی کی ویسی بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، مٹی کی ویسی بنی ہوئی ہیں، سر نہیں اٹھا سکتے، بس جھک کے ہی۔ یہ چلہ گاہیں ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، ایسی یہاں کئی چلہ گاہیں ہیں۔ ترمذ میں ہوں اور ترمذ کی چلہ گاہیں ہیں۔ اب دیکھیں میں باہر نکل رہا ہوں، تو اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے سیڑھیاں بنا دی ہیں، اور یہ دیکھیں دائیں بائیں بھی ان چلہ گاہوں کی بیٹھنے کی جگہ ہیں، اس دور کی صدیوں پرانی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ زیر زمین بہت ہی زیادہ گہری چلہ گاہیں ہیں مسلسل۔ ایک درویش تو تھا نہیں نا، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے
यहाँ तो पूरी एक दुनिया आबाद थी, मार्फत की पूरी दुनिया, तरीक़त की पूरी दुनिया, विलायत का पूरा जहान, रूहानियत का पूरा निज़ाम ज़ेर ज़मीन आबाद था। और रूह की दुनिया के वहाँ, मार्फत के वहाँ इमाम बैठे होते थे। और यहाँ से पूरी दुनिया को फैज़ ऐसे तो नहीं मिला। हाथ में कुछ कमाल हासिल किया है, उसका पीछे तन्हाइयाँ थी। तन्हाइयों की वजह से वो फैज़ और कमाल मिला है। इसको देखिए, ये भी वैसे ही है। दो चीज़ लगाए हैं, एक इधर रास्ता जा रहा है, एक इधर रास्ता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। नीचे गारे हैं। तिरमिज़ में ये हकीम तिरमिज़ी का मज़ार है। अल्लाहु अकबर। क्या उलू शान मरातिब हैं इन हस्तियों के, क्या कमालात हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बरक़ात हैं। रूहानियत के भी इमाम, इल्म के, फ़लसफ़े के, तिब के, हदीस के, फ़िक़ह के। क्या गुंबद, क्या ऊंचाइयाँ। अस्सलामु अलैकुम। हाय हिंदुस्तान, जी पाकिस्तान। पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। यग़फ़िरुल्लाहु लना व अंतुम सलफ़ना वना। बस ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मस्जिद है, पुराने दौर की मेहराब है। फिर इसके साथ ये चेक का मज़ार है। 14 दिसंबर हफ्ते का दिन, सफ़र करते करते पहुँचे हम आज कोकंद। एक यहाँ बहुत बड़ा शहर है, बड़ा तारीख़ी शहर है। एक वक्त था कि यहाँ 60 मदरसे थे और 4000 मस्जिदें थी। अब बाकी थोड़े रह गए। ये बादशाह का महल है, खुदा यार खान आखिरी जो बादशाह था। और इसके ऊपर एक चीज़ लिखी है, लिमिनल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार। क़यामत दिन अल्लाह कहेगा आज किसका मुल्क है, किसकी हुकूमत है और किसका निज़ाम है। मैं ही सब कुछ। बादशाह ने अपने महल के दरवाजे पे ये चीज़ लिखवाई। अल्लाहु अकबर। क्या थे कि जिनके अंदर सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था। सुभान अल्लाह। इस महल में 114 कमरे हैं। कुरान पाक की 114 सूरतें हैं और इसमें 7 सहन हैं। कुरान की 7 मंजिलें हैं। ये बादशाह इन निस्बतों को लेकर चलते थे। ये बादशाह इन खैरों को लेकर चलते थे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इनको लेकर चलते थे। ये बादशाह की निशिस्त, ऊपर बादशाह का सारा निज़ाम, महल है, बहुत बड़ा है सारा। अल्लाह पाक ने उस बादशाह को क्या मिजाज दिया था, क्या तबीयत दी थी। अल्लाह, ये भी वही एक नमूना है। बहुत से आसार मिट गए, बहुत सी चीज़ें मिट गई, लेकिन बहुत सी चीज़ें आसार अभी बाकी हैं। सवारियां थी उस दौर की बादशाहों की। उस दौर के बादशाहों की सवारियां। मैं वहीं पैलेस में हूँ, खुदा यार खान के पैलेस कोकंद। इसमें एक चीज़ देखें आप, वो पुरानी लिखाई और उसके बाद इंसानी खोपड़ियाँ, इंसानी हड्डियाँ। ये देखें। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा जो मेरे मुसलसल मुशाहिदा तजर्बात में, और मिस्र के कोने कोने को मैंने फिरने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मिस्र के, क्योंकि जादू की तारीख हज़ारों सालों से मिस्र से है और मिस्र ही जादुई तारीख का सबसे बड़ा मरकज़, और फिर पूरी दुनिया में जादू वहाँ से फैला। जिसमें मैं ख़ास कहूँगा कि इंसान की खोपड़ी पे जो जादू होता है, अगर वो मुयस्सर ना हो तो कुत्ते की खोपड़ी, वो मुयस्सर ना हो तो फिर बंदर की, खिंजीर की खोपड़ी, उस पर सख्त जादू होता है। और कितना सख्त जादू हो
सूरत वस्समाए व तारिक की आखिरी आयत है ना, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ये आयत अगर सिर्फ 25 बार हर नमाज के बाद वरना 25 बार सुबह शाम अगर ये आयत पढ़ी जाए तो जितना भी सख्त जादू हो, वो इन खोपड़ियों का हो या मिस्र का काला जादू, ये सारे उसके काले जादू के उनकी तहरीरों के अल्फाज लिखे हुए हैं। ये पुराना निज़ाम है। हम महल में हैं, कोकंद के महल में, उज़्बेकिस्तान में। तो ये अगर कितना ताकतवर जादू हो, ये जादू को खा जाता है और ये आयत उस सारे जादू को ख़त्म कर देती है। इसको मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये आयत कुत्ते काटने के लिए, भेड़ काटने के लिए, हत्ता कि कोई जहरीली चीज़ काट जाए उसके लिए, कोई इंसान काट जाए, कोई ऐसी चीज़ इंसान शरीर हो जिसको कुरान कहते हैं वो इंसान नहीं, उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, वो अगर वो इंसान नहीं, अगर वो चीज़ें भी घरेलू झगड़े, घरेलू मुसीबतें, घरेलू परेशानियाँ, घरेलू मसाइल, मुश्किलात का ज़रिया बने, तो ये उसके लिए ये आयत बहुत ताकतवर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। हम हर जुमेरात ज़िक्र ख़ास करते हैं। आप लिखें इफ्ताह या मुफ़त्तिहल अबवाब, ए दरवाज़ों को खोलने वाले, रिज़्क़ के दरवाजे, बरकत के दरवाजे, सेहत के दरवाजे, इज़्ज़तों के दरवाजे, खुशियों के दरवाजे, खुशहालियों के दरवाजे, या मुफ़त्तिहल अबवाब, ये उन्होंने दरवाजे पे लिखा है और ये मेन गेट है अंदर दाखिल होने का। ये या मुफ़त्तिहल अबवाब, जो शख्स चाबी खोलते हुए, कोई चाबी, गाड़ी की स्टार्टिंग की चाबी है, ताले की चाबी है, कहीं भी चाबी लगाए, और हत्ता कि वो नंबरिंग की चाबी है, बाज़ ब्रीफ केस में नंबर होते हैं, वो भी तो एक चाबी है। अगर सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ ले या मुफ़त्तिहल अबवाब, या मुफ़त्तिहल अबवाब, अगर सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ ले तो उसके मैंने बहुत नताइज देखे हैं। अल्लाह उसके लिए गैब से बरकतों के, इज़्ज़तों के, रिज़्क़ के, दौलत के, खैरों और रहमतों के अल्लाह दरवाज़े खोलता है और उसकी नस्लों के लिए खैरों और रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोलता है। या मुफ़त्तिहल अबवाब। कोकंद की ये जामे मस्जिद है, सदियों पुरानी। इसमें ये सतून 99 हैं, 99 अल्लाह के नाम की आदत 99 हैं, ये सारे उसके सतून हैं। और जो दरमियान में सतूनों के दरमियान में छतों के हिस्से हैं वो 114 हैं, जो कि कुरान की सूरतें 114 हैं। वो अपनी हर निस्बतों को, वो अपनी तमाम निस्बतें, जितनी भी उनकी निस्बतें थीं, उन निस्बतों को, ये देखें ये स्टोन सारे चल रहे हैं, उनको कुरान से मंसूब करते हैं बादशाह पे, लेकिन दिलों में बादशाह पे करते हैं, जिस्म पे नहीं। अगर सिर्फ जिस्म बादशाह हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं, वो दिलों के बादशाह थे। इसलिए वो अपनी हर रूहानी दुनिया को, हत्ता कि जिस्मानी दुनिया को भी, ये निज़ाम मस्जिद है तो इसको भी वो इन्हीं निस्बतों से जोड़ते थे। ये पुराने स्टोन पड़े हैं, ये देखें, जो खस्ता हो गए, पुराने हो गए, उन्होंने उनको संभाल के रखा हुआ है। कोकंद का ये म्यूज़ियम है, यहाँ की रिवायती चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में आती हैं, जो यहाँ की रिवायात हैं। पुरानी चीज़ें हैं, बंदा बैठा नक्काशी कर रहा है और चीज़ें बना रहा है। मखतूतात हैं पुराने कलमी, हिरन की खाल पे लिखे हुए, कागज़ पे लिखे हुए पुराने। कोकंद में एक जगह पहुंचे तो जापान कहते हैं गुदड़ी को और अबा को, मोटी, उसका एक धागा बन रहा है, ये देखिए, और मेहनत से धागा बना रहे हैं।